میں خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ گنتی کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 4 سے 9 آیت، جہاں ایسے لکھا ہے: پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے: کیوں تم ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے: ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا: ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 14 سے 17 آیت تک، 18 آیت تک۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس ایمان پر لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ تھینک یو بھاونا، خداوند کے زندہ کلام کو پڑھنے کے لیے اور ہم سب کو اس کلام کو سننے کے لیے بھی۔ میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے نا اس مائک کی وجہ سے؟ تو ابھی انکل بات کر رہے تھے کہ ہمارے کو کلام سنانا جو ہے وہ ضروری ہے اور لوگوں کے ساتھ بانٹنا ضروری ہے۔ تو ایک بار ایک بزرگ ایک کپل تھا، وہ ہر سال ایک میلے میں جایا کرتے تھے۔ تھینک یو ڈیرو بھائی، میں بس تھوڑا آلسی تھا ہی کرنے میں۔ تو ایک بار ایک جوڑا تھا، وہ ہر سال جو فیئر ہوتا ہے اپنے ولیج میں اس میں جایا کرتے تھے، اور ہر بار جان جو تھا وہ ایسٹر سے کہتا تھا کہ ایسٹر میں اس ہیلی کاپٹر کی جو رائڈ ہے میں اس میں جھولنا چاہتا ہوں۔ تو ایسٹر ہر بار کہتی کہ جان یس میں جانتی ہوں کہ تو اس میں جھولنا چاہتا ہے، مگر اس میں 50 پاؤنڈ لگیں گے۔ 50 پاؤنڈ ہوتے ہیں میرے ہسبینڈ، میں اس سے پیار کرتی ہوں مگر 50 پاؤنڈ ہوتے ہیں۔ اینی وے ایک سال بیتا، دوسرے سال پھر جان وہیں گیا، پھر جان نے وہی گزارش کری کہ ایسٹر مجھے اس ہیلی کاپٹر رائڈ میں جانے دے، اور ایسٹر نے کہا 50 پاؤنڈ ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر اگلے سال وہ دوبارہ گئے، دوبارہ جان نے کہا دیکھ ایسٹر میں آلریڈی 84 سال کا ہو چکا ہوں، 84 سال کا ہو چکا ہوں، اور مجھے لگتا نہیں کہ مجھے دوبارہ موقع ملے گا کہ میں اس ہیلی کاپٹر رائڈ میں دوبارہ جا سکوں، تو کیا تو مجھے 50 پاؤنڈ دے کر اس ہیلی کاپٹر رائڈ میں جانے دے گی؟ ایسٹر نے کہا دیکھو میں جانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارا آخری سال ہو سکتا ہے تم اس کے بعد نکل لو، مگر 50 پاؤنڈ ہوتے ہیں، 50 پاؤنڈ میں کیسے تمہیں دے دو؟ اچھا وہ جو پائلٹ تھا وہ کھڑا وہاں سن رہا تھا ہیلی کاپٹر کا، وہ بڑا پاس آیا، بولا دیکھیے میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس 50 پاؤنڈ ہوتے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے ایک پرپوزل رکھتا ہوں۔ ڈیل یہ ہے کہ میں آپ کو ہیلی کاپٹر کی رائڈ میں لے کے جاؤں گا، اور جو آپ نے منہ سے ایک ورڈ بھی نکالا، ایک لفظ بھی نکالا، تو آپ کو 50 پاؤنڈ دینے پڑیں گے، جو نہیں نکالا آپ دونوں نے تو آپ کی رائڈ فری۔ کیسی ڈیل ہے؟
लोगों ने बोला, उसने दोनों ने बोला बड़ी अच्छी डील है, दोनों बैठ गए। अब दोनों हेलीकॉप्टर में उड़ गए और जब ऊपर उड़े तो अब वो जो पायलट था उसको तो 50 पाउंड चाहिए थे, उसने अपनी डेयर ड्राइविंग ट्रिक्स जो थी वो करनी शुरू कर दी। कभी हेलीकॉप्टर को उल्टा कर दे, कभी सीधा कर दे, कभी खड़ा कर दे, कभी जमीन पर ले आए। एक जबान हिली नहीं, दोनों बैठे रहे चुपचाप, एक लफ्ज नहीं। उसने बोला लगता है कुछ और करना पड़ेगा, उसने रफ्तार बढ़ा दी और ऊपर ले गया बिल्कुल आसमान पे, फिर नीचे झुला के ले आया, बिल्कुल मौत का मंजर कर दिया दोनों के लिए। मजाल जो एक लफ्ज मुंह से बाहर आ जाए। एनीवे नीचे उतर के आए, जॉन खड़ा था और पायलट भाग के उसके पास आया, कह रहा वाह वाह जॉन वाह, मैंने जितनी कोशिश करी एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज नहीं, बट ब्रावो टू यू, यू आर वेरी वेरी ब्रेव। तो जॉन कहता है मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहता तो था जब एस्थर हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गई, मगर 50 पाउंड होते हैं 50 पाउंड में कैसे गवा देता। एस्थर गिर गई गिरने दो। तो इसलिए अंकल सलीम आपने बिल्कुल सही कहा, जब आपको एक जूल, जब आपको एक हीरा खुदावन के रूप में, खुदावन के स्वरूप में, खुदावन की इमेज में आपको मिल जाता है, तो आप उसको जेब में या बैंक के खजाने में नहीं, उसको अपने सर का ताज बनाकर रखते हैं। खुदावन हमारे लिए केक के ऊपर चेरी नहीं है, वो हमारे लिए पूरा केक है। और इस बात को साबित करने के लिए अभी हमने कलाम में पढ़ा, कलाम में लिखा है कि वो लोग जो खुदावन के साथ चलते थे, खुदावन के लोग कहलाते थे, 430 साल की इजराइल इजिप्ट की गुलामी में, मिस्र की गुलामी में पड़े थे। वहां पर उनको मौत मिलती थी, खाने को रोटी नहीं मिलती थी, दिन और रात अपना पसीना और लहू बहाकर वो काम करते थे। मौत और जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। मगर जब उन्होंने खुदा से दुआ मांगी तो खुदावन ने उनको एक ऐसा लीडर मोसेस के रूप में, जो बादशाह से बस कुछ ही नीचे था, प्रिंस था, ठीक है ना, वो अपने उस 40 साल के ऐशोआराम को, अपने पैलेस को छोड़ के इनको लेकर मरुस्थल में, विल्डरनेस में निकल पड़ता है। और वहां जाकर भी उनको कभी चट्टान से पानी मुहैया कराता है, कभी खुदावन उसका बटेरे उनके लिए दे देता है। और हर रोज, सिर्फ सैटरडे को छोड़कर हर रोज ऊपर से मन्ना गिरता है, ऊपर से, आसमान से, स्वर्ग से, क्या कहते हैं, फिरदौस से उनके लिए ब्रेड दी जाती है। उनके कपड़े फटते नहीं, छोटे नहीं होते, उनके जूते कभी फटते नहीं, जूते वैसे के वैसे ही रहते हैं। और खुदा उनको उस जर्नी पे लेकर चलता है। और उसके बावजूद वो लोग कहते हैं, हे मूसा, तू हमें यहां क्यों मरने के लिए ले आया, क्यों हमें इस जगह पर मरने के लिए नहीं ले आया। और कलाम क्या कहता है, यूहन्ना 3 में 14-15 आयत में कहता है, एंड एज द मोसेस लिफ्टेड अप द सर्पेंट इन द विल्डरनेस, जैसे मूसा ने उस ब्रॉन्ज के, उस पीतल के सांप को उस बल्ली पर टांगा था, वैसे ही इब्ने आदम, वैसे ही खुदावन का इकलौता बेटा, वैसे ही जिसके पास वो तख्त और ताबीद है, वही खुदावन का बेटा जिसके वसीले सारी कायनात बनाई गई है, वो तुम्हारे लिए उस सलीब पर मसलूब होगा ताकि तुम्हारे गुनाह माफ किए जा सके। कलाम में साफ लिखा है, like the Moses lifted up the serpent, same way they will be lifted up as well. Now वो दोबारा कंप्लेन करने लग जाते हैं मूसा से, मूसा तू हमें यहां क्यों ले आया। अच्छा, मूसा जो था वो खुदावन के वसीले, खुदावन का एक एम्बेसडर था, उन लोगों को जो कलाम पहुंचाता था। खुदावन मूसा से बात करता था, मुंह दर मुंह बात करता था, मुंह के अंदर, और ये डायरेक्ट जाकर उनको बता दिया करता था। वो खुदा जो आसमानी था, अपनी बादशाह छोड़कर उनसे बात करने के लिए आया करता था। ये उस खुदा के ऊपर लान तान कर रहे हैं, उस खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं, उस खुदा को अनसुना कर रहे हैं, उस खुदा को डिसोबेट कर रहे हैं, जहां वो मौजे रोज होते देखते हैं, हर रोज मौजे होते देखते हैं। एक दिन एक इंसान मुझे मिला, जॉइनर था, क्रिश्चियन, बोला मैंने आज तक कभी कोई मौजा नहीं देखा भाई, मेरी जिंदगी में कोई मौजा नहीं हुआ। मैंने कभी बुखार हुआ है आपको? बोला हाँ। मैंने कहा पैरासिटामोल कभी खाई है आपने? बोले हाँ। मैंने कहा वो अपने आप में एक मिरेकल है। खुदा ने इंसान को कुव्वत दी और उसने उस पीसीएम को, उस पैरासिटामोल को बना दिया। याद है जब उसका पतरस की मां बीमार थी, किससे बीमार थी? सास, पतरस पीटर की मां, पतरस की सास जब बीमार थी तो किस बात से बीमार थी? क्या था उसको?
بخار تھا نا, بخار تھا, اس کو خدا نے یسوع مسیح کو بلانا پڑا اس کا بخار اتارنے کے لیے. یہاں ہمارے پاس خدا نے اپنے وزڈم ہم لوگوں میں سونپی اور ہم لوگوں میں یہ دوائیاں آ گئی. اچھا ہم کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے بنائی ہے. سائنٹسٹ نے نہیں بنائی ہے. سائنٹسٹ نے بنانی ہوتی تو وہ 2000-50,000 سال پہلے سے بنا لیتے. نہیں بنائی نا, ابھی بنائی جب خداون کا وقت آیا, جب خداون نے چاہا کہ میں اور آپ اس میریکل سے ایک PCM سے ٹھیک ہو سکے, ایک اینٹی بایوٹک کھا کے ہماری ضرورتیں ٹھیک ہو سکے. وہ کوڑ کے لیے جو خداون یسوع مسیح نبان کو اس ساتھ ڈبکیاں مارنی پڑی, لڑائی کرنی پڑی, سارے کام کرنے پڑے, وہ تب معجزے اس طریقے سے کیا کرتا تھا اپنے نبیوں کے دوارا. اور آج وہ یہ معجزے ایسے کرتا ہے کہ آپ کو ایک انجیکشن دیا جاتا ہے اینڈ یو گیٹ ہیلڈ. کیا معجزے نہیں ہوتے؟ ہاں, معجزے ایسے نہ ہوتے ہوں گے کہ آپ نے سمندر کو 2 فاڑ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, نہیں ہوتے ایسے معجزے. ہو سکتا ہے وہ آفیسز آر سیزڈ بیکاز دا بائبل از ultimate prophet. Bible is the ultimate word of God and that's it. That's the reason Bible has been canonized and we don't need to add anything in the Bible. Anyway, خداوند سے ان لوگوں نے بدتمیزی کری, I would say, خدا کو چھوڑ دیا as if وہ جب ایجپٹ میں تھے, جب مصر میں تھے تو بڑی بادشاہت میں تھے, ایز اف ان کو کھانے کے لیے وہاں پر میٹ ہی میٹ ملا کرتا تھا اور سلاد ہی سلاد ملا کرتا تھا. ٹیمپٹیشن جو ان کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ وہ وہاں غلامی میں تھے اور ٹھیک ہے چھوٹی موٹی بوٹی کھا لیتے ہوں گے, مگر یہاں انہیں خدا بٹیرے دے رہا ہے, روز کی روٹی دے رہا ہے, چٹان میں سے پانی نکال کے دے رہا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کس بات کی تنگی نہیں ہوگی, کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی بدحالی نہیں ہوگی, کوئی تمہارے پر سرفراز نہیں ہو پائے گا. وہاں دودھ اور ہنی کی ندیاں بہیں گی. رائٹ, اس ملک میں جانے کے لیے وہ انتظار نہیں کر پائے اور خدا سے دوبارہ بدتمیزی کر دی. خدا نے جو 3.5 مہینے کا راستہ تھا وہ 40 سال میں تبدیل کر دیا. بولا تم جیسی جنریشن کو میں لے کر جانا ہی نہیں چاہتا اس پرومس لینڈ میں. پرومس لینڈ از اے بگ تھنگ, آئی ایم ناٹ گونا ٹیک یو دیٹ. خدا سے انہوں نے بدتمیزی کری, خدا سے انہوں نے حکم دوری کری and God said you are not going there. Anyway, اب وہ خدا سے اس کا ڈس اوبیڈینٹ ہو رہے ہیں اور خدا نے کہا ان کے بیچ میں فائری سرپنٹ بھیج دیے. فائری سرپنٹ بھیج دیے, وہ لوگ اب موت ہے ان کے پاس, بیماری ہے, پریشانی ہے, تڑپتے ہیں اس پوائزن کی وجہ سے. رائٹ, تو خدا نے کیا کہا جب وہ لوگ بھاگے, جب انبیریبل ہو گیا پین, جب وہ گناہ میں اتنے ڈوب گئے کہ ان کو پتا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا, خدا کے پاس بھاگے, موسیٰ کے پاس بھاگے. موسیٰ اس خدا سے دعا کر جس سے تو روز بات کرتا ہے کہ یہ سرپنٹ جو ہم نے گناہ کیے اس سے ہمیں معافی ملے اور یہ سرپنٹ سے ہمیں چھٹکارا ملے. موسیٰ نے, خدا نے پھر ان کی بات سنی, پھر انہیں معاف کیا اور کہا, کیا کہا موسیٰ سے, سرپنٹ ہٹا لے, وہ سانپوں کو ہٹا لے. کیا بولا, ایک ایسا کر پیتل کا سانپ بنا, بلی پر ٹانگ, جو کوئی اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا, چاہے کسی بھی حالت میں ڈیڈ پڑا ہو, بس مرنے پر ہو, جیسے ہی اس کو دیکھ لے گا بچ جائے گا. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کیا؟ جب ہمارے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے پر کوئی امید نہیں بچتی. ہم بھی ہیلنگز کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم بھی بڑے معجزوں کے لیے دعا کرتے ہیں, رائٹ, کرتے ہیں نا, مگر اس کے پاس ایگزیکٹلی دا وے ہی وانٹس اس نہیں آتے. اور جب آتے ہیں تو خدا کہتا ہے تمہارے پاس, تم نے بڑی کوشش کر لی. انکل نے بالکل صحیح بات بولی, آپ جتنے اچھے کام کر لیں آپ سورگ نہیں جا سکتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا, کیا وہ سرگ جائے گا؟ یسوع مسیح کو مانتا تھا, نہیں, نرک جائے گا. سمپل از دیٹ. کلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ میری قوت نہیں ہے, کلام میں لکھا ہے. اور ابھی میں اس بات کو آپ کے سامنے بہن نے پڑھا ہے ہمارے سامنے, رائٹ. خدا کا کلام صاف صاف کہتا ہے مسیحوں کے لیے صرف مسیح کو فالو کرنا ضروری ہے, صرف مسیح کو فالو کرنا ضروری ہے. اب آگے پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے, جیسے ان لوگوں نے دیکھا بچ گئے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر معجزہ ان کے ساتھ ہوا. اب اپنے آپ کو فاسٹ فارورڈ کریں جب یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دے رہا ہے اور کہتا ہے, ہے سانپوں, ہے کریتوں, تمہیں کس نے چتا دیا کہ من پھراؤ, کیونکہ انت کا وقت نزدیک ہے, کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کس نے بتا دیا تمہارے کو؟
Anyway, they come and they've been baptized in the Jordan. They were in the wilderness too. They were in the wilderness. आज हम भी एक wilderness में हैं. आज हम corruption की wilderness में हैं, disobedient की wilderness में हैं, अपने गुनाहों की wilderness में हैं. और जैसे उस समय तंगी, मोहताजी, परेशानी, लाचारी, मौत, illness उन लोगों के बीच में आई, because they rejected their God, the same way we are in this wilderness. हम जब खुदावंद को रिजेक्ट करते हैं तो बीमारी, परेशानी, लाचारी, मोहताजी, तंगी और मौत हमारे सर पर आके खड़ी हो जाती है. मगर खुदावंद ने फिर एक बार मौजज़ा किया और उसने क्या बोला? कलाम में साफ लिखा है, जैसे मूसा ने उस सांप को उठाकर ऊपर टांगा था, वैसे ही इब्ने आदम, खुदावंद का एक लौता बेटा, सलीब पर टांगा जाएगा. और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा. जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा. कंडीशन अप्लाइज. जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा. उन्होंने उसको सलीब, उन्होंने बल्ली की तरफ देखा, उस सांप की तरफ देखा और जिंदा हो गए. राइट? अब सोचिए, यीशु मसीह सलीब पर मर रहा है. क्रॉस की कोई वैल्यू नहीं है. ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है. इस पर टंगने वाले की वैल्यू है. ठीक है? क्रॉस की कोई वैल्यू नहीं है, इस पर टंगने वाले की वैल्यू है. क्यों? अब बोले यार उस समय तो ये ट्रेंड था, बतेरे लोग जो थे वो सलीब पर मारे जाते थे. बिल्कुल, मगर इब्ने आदम सिर्फ एक ही बार सलीब पर मारा गया है और इसलिए उसके मरने के वसीले हमारे गुनाह माफ होते हैं, क्योंकि वो खुदावंद का बेटा था, क्योंकि वो इब्ने आदम था, क्योंकि वो बेऐब था, क्योंकि वो बेगुनाह था. हम सब गुनहगार हैं, चाहे कितनी सेंचुरी से कह लीजिए, चाहे हम करोड़ों साल से जी रहे हो, चाहे अभी 6000 साल से जी रहे हो, जितने सालों से हम जी रहे हैं, सब गुनहगार हैं, वन टू ऑल. और एक गुनहगार नहीं था, उसको हमारे बाप दादाओं ने एक सलीब पर टांग दिया. किसको? यीशु मसीह को. तो सलीब की कोई वैल्यू नहीं है, सलीब पर टंगने वाले की वैल्यू है. इसका मतलब सलीब को देखने की वजह से कुछ नहीं होगा. सलीब के ऊपर जो टंगा है उसके साथ, उसके पीछे चलने से कुछ होगा. राइट? Because he gave his life for you. He is the love, he is the truth, he is the hope, he is the life, he is our faithfulness. And if you don't have him, you don't have life, you don't have truth, and you are living in a lie. चैलेंज किया मसीह ने, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? जी, बेगुनाह. जी, खुदावंद यीशु मसीह था जो सिर्फ बेगुनाह था, बाकी सब गुनहगार है. अब देखिए वो दोस्त जो डाकू है वो उसके साथ लटके हुए हैं. अंतर देखिए, पोल्स अपार्ट. एक खड़ा होकर कहता है, एक सलीब पर लटका हुआ कहता है कि जो तू मसीह है, कि जो तू मसीह है, चैलेंज कर रहा है उसको, जो तू मसीह है तो हमें भी उतारो, खुद भी उतार. क्यों नहीं करता? तू तो बड़े बड़े मौजे किया करता था, मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था, लंगड़ों को चलना सिखाता था, गूंगों को बोलना सिखाता था. तू तो इब्ने आदम है. टोन मार रहा है उसको. जो तू मसीह है तो हमें बचा और खुद भी बचा. दूसरा वे कहता है शर्म कर यार, अब तो शर्म कर, तू सलीब पर लटका हुआ है, अपने गुनाहों की माफी मांग ले. हम तो वो जो हमारे सलीब है तो हम भुगत रहे हैं क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, मगर ये तो बेगुनाह है. कहता है मसीह मुझे याद रखना जब तू अपनी किंगडम में आए. क्या कहते हैं उसको उर्दू में? कुछ अपनी बादशाहत में है. उसने बोला आज ही, नाउ यू विल बी विद मी इन पैराडाइज. आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा. ये वायदा हो गया. उसने सलीब की तरफ देखा, उसने भी सलीब की तरफ देखा. जो पहला डाकू है उसने भी सलीब की तरफ देखा, मगर उसका जो लेंस था, उसका जो स्कोप था, जो उसका क्राइटेरिया था, दैट वाज नॉट द वे क्राइस्ट वांटेड. ही डोंट वांट टू फॉलो क्राइस्ट, ही जस्ट वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ क्राइस्ट एंड सेड तू मसीहा है तो हमें भी उतारो, खुद भी उतार. वेल, तू नहीं उतारना, कम से कम मुझे तो उतार दे. That was actually he was trying to say, तू मर रहा है, मर, मुझे तो उतार. मगर दूसरा कह रहा है भाई मेरी मौत तो है ही, क्योंकि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मुझे तो मौत मिलनी ही मिलनी है. आए खुदा के इकलौते बेटे, मुझे माफ कर, क्योंकि तू, मैं जानता हूं तू मसीह है, मगर जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखियो, सिर्फ याद रखियो, क्योंकि मैं I would like to follow you. He confessed his sin just there, and he confessed that Lord, you are only God. He looked at the cross in a different way. उसने क्रॉस की, उसने सलीब की तरफ डिफरेंट तरीके से, तो उसने सलीब की तरफ, वो लकड़ी की जो खूबसूरत क्रॉस बनी थी उसकी तरफ नहीं देखा.
उस अगली क्रॉस की तरफ नहीं देखा जिस पे खुदावंत का लहू था, उसने उस पे टंगे हुए इंसान को देखा और उससे उसने निजात पाई। ये है निजात, राइट? तो हम जितने जो इस गुनाह में पड़े हैं, जितने इस विल्डरनेस के अंदर वॉक कर रहे हैं, जो हम खुदावंत के पीछे हो ले, तो विल्डरनेस हमारे लिए खत्म हो सकती है, वो इलनेस हमारे लिए खत्म हो सकती है, वो मौत, वो दोजख हमारे लिए खत्म हो सकता है जब हम यीशु मसीह के पीछे हो ले। अच्छा, अब गुड न्यूज अंकल ने साफ साफ बता दिया आपको। जॉन 3:16 सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है जॉन 3:16। बाइबल देना चाहूंगा। जॉन 3:16 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? खुदा ने, जोर से बोले सबको आती है, ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा मसलूब होने के लिए दे दिया ताकि जो कोई, अब जो कोई में कौन कौन आता है? कौन बनाया था जो कोई में? हर कोई, हाँ जी, एवरीवन, राइट? एब्सोल्युटली। खुदा ने अपना, मैं पढ़ता हूं इसके अंदर, क्योंकि खुदा ने दुनिया से पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। साफ साफ लिखा है कि जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। हलाक होना हम सबके लिए लिखा है। दूसरी आयत पढ़ के देखते हैं। रोमियो पता है ना आपको? वाला रोमियो नहीं, ये दूसरा वाला रोमियो भाई। रोमियो की किताब, उसका मैंने निशान लगाया था, ला दिया तुम निशान, सॉरी मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपके। रोमियो की किताब, उसका 5वां, उसकी 9वीं आयत। क्या लिखा है? 5वां, उसकी 9वीं आयत। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, बस जब हम खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, खुदावंद यीशु मसीह खून के वसीले, तो उसके वसीले से गजब ए इलाही से जरूर ही बचेंगे। गजब इलाही क्या मतलब होता है? खुदा का गजब, wrath of God. What do we deserve? What do we deserve is the wrath of God. We don't deserve the love of Christ. We don't deserve that Christ died for us. We don't deserve the love of God. We don't deserve the miracle जो वो मौजे हमारे साथ कर रहा है, जो दिन ब दिन हमारे साथ मौजे होते हैं। We don't deserve it. What we deserve is खुदा का राग, खुदा का गजब हमारे ऊपर भड़कना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। Is that right? Because हम इतने गुनहगार हैं कि खुदावन की मोहब्बत से बहुत दूर हैं। मगर कलाम कहता है जब हम गुनहगार ही थे, तुम में से कोई भी रास्तबाज नहीं था, जब तुम गुनहगार ही थे तभी खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे शरीर पर मुआ ताकि उसके लहू बहाने के वसीले तुम्हारे गुनाह माफ किए जा सके और तुम इब्ने आदम के जहां वो रहता है तुम वहां पर जा सको। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसके लहू बहाने के वसीले तुम अब रास्तबाज ठहरे हो। जो तुम दोजख में थे अब तुम स्वर्ग के वासी हो। स्वर्ग को उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग? फिरदौस, जन्नत। कौन जाना चाहता है जन्नत? हाथ लगे खड़ा, हाथ ला के दिखाएं। कौन जाना चाहता है जन्नत? बताएं। कौन नहीं जाना चाहते? सभी जाना चाहते हैं। तो बताइए मरना कौन चाहता है? मरना कौन चाहता है बताएं? ये हाथ गा रहे हैं। जन्नत सब जाना चाहते हैं मगर मरना कोई नहीं चाहता, राइट? जब टाइम आएगा तब जन्नत पहुंचा देना खुदा। अब अभी नहीं बचाना है ना, अभी हम इसी दोजख में खुश हैं, राइट? खुदा ने कहा उसके लहू बहाने के वसीले हम रास्तबाज हैं, नहीं तो वी डिजर्व द रात, द गजब जो है खुदा का, हमें रात ऑफ गॉड वी शुड गेट इट, बट बिकॉज ऑफ हिज लव वी अटेन द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया में और आप आते हैं मेरे भाई, मेरे अजीजों, क्योंकि कितने ही गुनाह हो वो हमारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार है। कंडीशन है, मगर हर चीज में कंडीशन अप्लाई है, ध्यान रखिए। क्या कहता है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब उसके बाद और क्या कहता है? क्योंकि ये खुदावन का पाठ चल रहा है, अभी तक हमारा पाठ कुछ नहीं है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, उस समय दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि सजा का हुक्म करे, राइट, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। सिंपल, बड़ा अच्छा गॉस्पेल है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि जी उसने, खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर इसलिए भेजा ताकि आप लोगों पर क्या करे? आप लोगों को सजा का हुक्म करे ताकि आप सब लोग निजात पाएं। बिल्कुल ठीक बात है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली राइट।
Right now he is sitting on the great throne of grace. ग्रेस को उर्दू में क्या कहते हैं आप? फजल. अभी वो फजल के तख्त पर बैठा है. वो आएगा बादलों पर जब जजमेंट करेगा. वो आएगा और तब हम फजल के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि उसने उसके हाथ में हम अन्याय दे रखा है, जजमेंट दे रखा है, सजा दे रखी है. सजा किसको मिलेगी? जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे ना हो. साफ बात. उसने दुनिया में भेजा ताकि दुनिया में रहे, दुनिया उसको सलीब पर टांग दे, वो मरे, जी उठे, 40 दिन बाद बाप के पास वापस चला जाए. He has done his part. Now what is our part? Verse 18. सारी दुनिया जॉन 3:16 जानती है. जॉन 3:18 पढ़ना कोई नहीं चाहता. कलाम क्या कहता है सुनिए. मैंने कहा मुझे बुरा मत कहिएगा, और इफ यू आर ऑफेंडेड गेट ऑफेंडेड. 18. जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता. सच है, कोई शुबा नहीं उसमें, राइट. जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका. ट्रुथ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं. जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता. जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदावंद के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया. Gospel is truth and clear, crystal clear. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि खुदा आपसे प्यार करता है. 100% करता है. इतना करता है कि अपना एक लौता बेटा उसने दे दिया. एक लौता बेटा उसने दे दिया. Everybody wants that martyrs should be born. You know what martyr is? शहीद. हर कोई चाहता है कि शहीद पैदा हो, मगर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में. राइट. मेरे घर में पैदा होगा तो मेरा बेटा जाएगा लड़ने के लिए, मेरा मैं नहीं चाहता. उसने अपना एक लौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया, जिसके वसीले उसने सारी कायनात को बनाया था. सोचे कितनी मोहब्बत करता था उससे वो. हम इंसान गुनहगार होकर अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जरा सी खरोंच लग जाए तो हमारे दिल पे खरोंच लगती है. राइट. उसने अपना एक लौता बेटा वही प्लान बना के कि ये तुम्हारे लिए मजलूम होगा. यार शर्म करो. वो सोचता होगा इन लोगों के लिए मार दिया मेरे अपने बेटे को, इन लोगों के लिए जो गुनाह करने से बाज नहीं आते, मगर चल फिर भी मेरे बेटे के वसीले फिर माफ किया तुझे. मेरे बेटे के वसीले फिर तुझे दोजख के गड्ढे से निकाल कर फिर तुझे फिर जन्नत में पहुंचा दिया, सिर्फ मेरे बेटे के लहू बहाने के वसीले. क्योंकि कलाम कहता है उसके लहू बहाने के वसीले मेरे और आपके गुनाह माफ होते हैं. एंड दिस इज द गुड न्यूज माय फ्रेंड्स. And if you still don't share it, shame on us. और इससे ज्यादा गुड न्यूज क्या चाहिए? आपने करना ही क्या है, हमने करना ही क्या है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, आप बड़े धर्मी हो जाएंगे, आप बड़े रास्तबाज हो जाएंगे ना. रास्तबाज भी गुनाह करते हैं, हम भी गुनाह करते हैं, हम सब गुनाह करते हैं, मगर we do it in less frequency. And every time we do, the Holy Spirit, रूल कुदूस कहती है ये गुनाह कर रहा है जो तू कर रहा है. समझ आ रही है? इसलिए गुनाह को एंजॉय मत कर. Come out of it. Come on your knees. Repent. गुनाह से रिपेंट को क्या कहते हैं उर्दू में? तौबा कर. तौबा कर, खुदावन के पास आ, खुदावन तुझे फिर माफ करेगा. इसलिए नहीं कि तू बड़ा अच्छा बच्चा हो गया ना, इसलिए कि उसका बेटा तेरे लिए मसलूब हुआ है, इसलिए वो तुझे माफ कर रहा है. एंड दैट्स द गॉस्पेल. सिंपल, क्रिस्टल क्लियर. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल स्टिल आर्ग्यू. आई डोंट नो व्हाई पीपल स्टिल डोंट फॉलो क्राइस्ट जीसस. इतनी अच्छी डील और कहां मिलेगी? ये तो वो पायलट वाली डील भी नहीं है ना. एस्तर लुढ़क गई उसका हेलीकॉप्टर से, और हमारे को कह रहा है वर्ड नहीं बोलना कोई भी, है ना. यू नीड टू स्पीक अबाउट क्राइस्ट. यू नीड टू कीप इट ऑन योर हेड, बिकॉज वो सरताज है. जैसे मैंने बोला, वो हमारी चेरी नहीं है, चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, कि आप अपनी तरीके से अपना केक बना लें और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को ऊपर से रख दें जरा सा बस ना. जब खाने का टाइम हो तो उसको उठा के साइड में रख दिया, बोले तुझे बाद में खाऊंगा, पहले मुझे केक खाने नहीं. God is our main meal. God is our main meal. And that's what the Christ is. That's what the gospel is. खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और थैंक यू अंकल इतना सच्चा कलाम बांटने के लिए और मुझे इंकरेज करने के लिए कि we both are on the same page at least.